Good morning, students. I welcome you all. Today we are going to discuss the case studies of Consumer Protection Act 1986, students. Earlier we will discuss the theory part of all the chapter that covers Consumer Protection Act 1986. So let's discuss the case study. Now students, before discussing the case study, I always tell you कि स्टूडेंट्स हमेशा केस स्टडी के लास्ट की 2 लाइनें आप पढ़िए. लास्ट की 2 लाइनों से आपको यू विल अवेयर कि वो उसमें क्या पूछा गया है. Right, students? So let's discuss the very first case study. In the very first case study, it has been written in the last 2 lines. After looking at their plight instead of a business organization, he decided to set up an organization for the protection and promotion of consumer interest of the villagers. State the functions that the organization established by Aman will be performing. Right, students? So I hope ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की केस स्टडी है स्टूडेंट्स. इट कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स. इसमें फंक्शंस पूछे गए हैं, फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्टूडेंट्स. राइट स्टूडेंट्स? सो इट कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स. ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की केस स्टडी है. राइट स्टूडेंट्स? सो लेट्स डिस्कस द, यू कैन गेट द हिंट नाउ. अब आपको हिंट मिल गया है. हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं. अमन, अ डिग्री होल्डर इन एंटरप्रेन्योरशिप, कम टू नो अबाउट Pilpantry village located in Rajasthan, where in 2006 an initiative was started in which 111 trees are planted every time a girl child is born. To keep termites away from the trees, the villagers have planted 2.5 million aloe vera plants around the trees. This has turned the villages into an oasis, as the planting of trees led to higher water levels. Aman decided to visit the village to start a business unit for the processing and marketing of aloe vera into juice, gels, and other products. However, on visiting the village, Aman found that the villagers were suffering exploitation at the hands of the local merchants, who were engaged in unscrupulous exploitative trade practices like hoarding and black marketing of fruit products, and also selling unsafe, adulterated products to the villagers. After looking at the plight instead of a business organization, he decided to set up an organization for the protection and promotion of the consumer interest. Now this is the line, student, जो मैं आपसे कह रहा था कि हमेशा लास्ट की कि किसी भी केस स्टडी को करने से पहले आप हमेशा लास्ट की 2-3 लाइन्स को जरूर पढ़िए. राइट स्टूडेंट्स? उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है और किस चैप्टर से रिलेटेड है. नाउ इट हैज बीन रिटन, he decided to set up an organization for the protection and promotion of the consumer interest of the villagers. हमने बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पढ़ा हुआ है. राइट स्टूडेंट्स? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज. राइट स्टूडेंट्स? तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. अब इसमें आगे क्या पूछा हुआ है? इसमें आगे पूछा हुआ है, स्टेट द फंक्शंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अमन विल बी परफॉर्मिंग. राइट स्टूडेंट्स? सो अमन ने एक एनजीओ स्टार्ट करना चाह रहा है वो, और उसके फंक्शंस आपको बताने. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द 6 फंक्शंस दैट कम्स अंडर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ इसका आंसर है स्टूडेंट, फर्स्ट केस स्टडी का. द आंसर ऑफ अ वेरी फर्स्ट केस स्टडी इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ. और उसके आपको यू हैव टू राइट 6 फंक्शंस. उसके आपको 6 फंक्शंस लिखने, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स. Right, students? I hope the very first case study is very much clear to you. Now come to the another case study, students. हम सेकंड केस स्टडी की तरफ चलते हैं. सेकंड केस स्टडी में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, जरा लास्ट की पॉइंट्स पढ़िए. एज आई टोल्ड यू कि हमेशा लास्ट के पॉइंट पढ़ने चाहिए. लास्ट के पॉइंट पढ़कर देखें आप. लास्ट में लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन सेकंड में, सेकंड केस स्टडी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर एज रेफर टू इन द अबव पैराग्राफ. आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा कि ये जो केस स्टडी है दिस इज फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसमें क्या पूछा गया है, द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. राइट स्टूडेंट्स? सेकंड पॉइंट में लिखा है, इन एडिशन टू द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी of the consumer identified in point first, write one more right and responsibility and explain it. जो स्टूडेंट्स ऊपर पूछा गया है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिसाइड्स दैट राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि क्वेश्चन में आएगी, उसके अलावा आपको यू हैव टू राइट इन एडिशन वन मोर राइट और वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड में पूछा गया है, कैन सुरेखा फाइल अ कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर कोर्ट. आई होप आफ्टर रीडिंग दीज 3 पॉइंट्स फ्रॉम सेकेंड केस स्टडी इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि ये बेटा कहाँ से पूछी गई है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पूछी गई है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. सुरेखा इज अ स्टूडेंट ऑफ 10+2 commerce class.
She listened attentively and understood the lecture on Consumer Protection Act delivered by the teacher. Her teacher remarked that currently consumer enjoys several rights. In case goods purchased by him or her causes harm to his or her health and property, there is a provision for compensating him or her. Besides, this act has also some expectation from the consumers that during the course of his or her purchase, he or she should keep certain things in mind. Briefly, provisions of the act can protect the consumer only when he or she has complied with certain fundamental things. The very next day of this lesson, Surekha purchased an ISI marked heater from Bharti Enterprises. Now students, listen to me very much carefully. यहाँ पर केस स्टडीज मेन हो जाती है. The very next day of this lesson, Surekha purchased an ISI marked heater from Bharti Appliances. She made cash payment, but she failed to get a cash memo. Right, students, she failed to get a cash memo. While making use of the heater, she observed that it was not working properly. She contacted the shopkeeper immediately and told him her problem. Shopkeeper paid no heed to her complaints. Right, students? Rather, he remarked that the good in the question was not bought from his shop. Right, students? So, अब ये चीज क्लियर हो गई है कि सुरेखा ने एक भारतीय एंटरप्राइजेस से कैश में क्या लिया था बेटा, एक वाटर हीटर लिया था. राइट स्टूडेंट्स, लेकिन वो कैश मेमो नहीं ले पाई है. और अब भारतीय एंटरप्राइजेस का जो शॉपकीपर है वो कह रहा है कि भाई ये मेरे यहाँ से नहीं खरीदी गई है. अब इसके बेस पे क्या केस स्टडी है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर एज रेफर टू इन द अबव पैराग्राफ. बेटा इसमें क्या है अबव पैराग्राफ में? सबसे पहले कौन सा राइट आएगा इसमें? राइट टू सेफ्टी. राइट स्टूडेंट्स, राइट टू सेफ्टी आएगा. और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सुरेखा मस्ट ऑब्टेन कैश मेमो. फर्स्ट का आंसर है राइट टू सेफ्टी, और बेटा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सुरेखा मस्ट ऑब्टेन कैश मेमो. सेकंड का आंसर क्या होगा? इन एडिशन टू द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर आइडेंटिफाई राइट वन मोर राइट और वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकंड क्वेश्चन के अंदर बेटा आप कोई भी एक राइट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, एनी राइट और एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड का आंसर होगा स्टूडेंट, कैन सुरेखा फाइल अ कंप्लेंट? नो, सुरेखा कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट बिकॉज शी डज नॉट ऑब्टेन अ कैश मेमो. उसने कैश मेमो नहीं लिया था उस दुकानदार से, तो Surekha cannot file a complaint in a consumer court. I hope the second case study is very much clear to you, students. So this is how the base studies case studies has been solved. Now come to the third one. थर्ड वन पे आते हैं स्टूडेंट्स. थर्ड वन में जरा लास्ट लाइन देखेंगे बेटा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें ये लिखा हुआ है बेटा, द कंपनी ऑल्सो मेंटेन्स कंज्यूमर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग सेंटर. गिव एंड एक्सप्लेन एनी 4 रीजन व्हाई अल्फा फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड इज प्रमोटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन. राइट स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन बाय अल्फा फूड प्रोसेसिंग. राइट, हमें ये लास्ट लाइन से पता लग जाता है कि दिस इज अ केस स्टडी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पूछी गई है. अब इसमें क्या पूछा गया है, हम स्टार्टिंग से चलते हैं स्टूडेंट्स. बीटा फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड इज engaged in manufacturing jam, squashes and jelly for the consumers. The labels on the product clearly mention the date of manufacturing, date of expiry, contents, etc. The products are packed in standardized units. The company's product also bear the FP authentication. It believes in fair dealing and from time to time conducts consumer awareness programs. The company also maintain a consumer grievances handling center, यानी कि कंपनी ने अपने कस्टमर केयर भी बनाए हुए हैं. Give and explain any 4 reason why Alpha Food Processing Limited, right students, is promoting consumer protection. बेटा this is the answer. ये बेटा आंसर है, importance of consumer protection from business point of view. आई होप इट स्टूडेंट्स इट इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि यहाँ पर बेटा यहाँ पर हम शॉप की बात कर रहे हैं. सो यू हैव टू राइट, इसमें 4 मार्क्स की है, तो 4 मार्क्स की इंपॉर्टेंट में आपसे पूछी गई है बेटा. 4 मार्क्स में 4 इंपॉर्टेंस आप लिखेंगे. यू नोट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस, मॉरल जस्टिफिकेशन, सोसाइटी रिसोर्सेज, social responsibility, government action and public support. You have to write any 4 importance of consumer protection with explanation. I hope this is very much clear to you students. Now come to the another one. The fourth case study students. Fourth case study में हम देखें क्या पूछा गया है. Fourth case study is of 3 marks. Last line में चलते हैं. Fourth case study में state and explain 3 points that highlights the need for consumer protection as discussed in Grahak Shakti's workshop.
इट इज वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पूछी गई है और हमें इसमें 3 नीड लिखनी है, 3 इंपॉर्टेंस लिखनी है. अब वो किसकी नीड और किसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. राइट स्टूडेंट्स, ग्राहक शक्ति एंड एनजीओ organized a workshop to discuss various issues relating to consumers. During the discussion, one of the members drew attention towards exploitation of consumers due to defective and unsafe products, adulteration, black marketing, hoarding, etc. To this, another member argued that consumers themselves are responsible as they do not raise collective voice against the exploitation. The chairperson of the organization was of the opinion that it was also the duty of the businessman to take care of interest of various stakeholders. Business organizations earn money by selling goods and services to consumer. So the interests of the stakeholders have to be well taken care of. Explain and explain that highlight the need of consumer protection as discussed in Grahak Shakti's workshop. So students, I hope it is very much clear to you. You have to write the 3 importance of consumer protection from business point of view. Right students, you have to write the 3 importance of consumer protection. ये बेटा आप 3 importance लिखेंगे consumer point of view से. You have to write the 3 importance from the consumer point of view. Consumer point of view से students इसमें 3 importance कौन सी होंगी? Right students, consumer protection में 3 importance है consumer ignorance, unorganized consumer, widespread exploitation of consumer. I hope students this 4th case study is very much clear to you. केस स्टडी जो 3rd थी बेटा उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू आना था, और जो केस स्टडी 4th है, इन केस स्टडी 4 यू हैव टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. राइट स्टूडेंट्स, एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंस: कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. ये तीनों इंपॉर्टेंस लिखनी है और इसको एक्सप्लेन करना है. आई होप द 4th केस स्टडी इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ कम टू द 5th वन. अब हम 5th वन पे आएंगे स्टूडेंट. 5th में जरा लास्ट में देखें बेटा क्या लिखा हुआ है. 5th केस स्टडी कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स. ये बेटा 3 मार्क्स की केस स्टडी है 5th केस स्टडी. सो वेयर शुड तानिया फाइल अ कंप्लेंट, जस्टिफाई अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट. नाउ द फ्रॉम 5th केस स्टडी इट इज वेरी मच क्लियर. लास्ट टाइम से हमें क्लियर हो जाता है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पूछी गई है. सो हम इससे स्टार्टिंग से देख लेते हैं स्टूडेंट्स. Tanya purchased some household goods from general store. After reaching home, she found a face cream which she had not billed for. उसने बिल नहीं लिया था स्टूडेंट्स. After checking the date of expiry and other details, she start using it. Checking the date of the expiry बिल्कुल ठीक थी. She start using it. लेकिन उसने उस चीज का बिल नहीं लिया. Her face burned due to the use of the cream. Where should Tanya file a complaint? Justify under Consumer Protection Act 1986. Who can file a complaint? राइट स्टूडेंट्स, द आंसर इज बेटा केस स्टडी 5 का आंसर ये होगा बेटा, नो तानिया कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट एज शी डज नॉट हैव अ प्रूफ ऑफ परचेज. उसने बेटा बिल नहीं लिया है, इसमें लिखा हुआ है शी हैड नॉट बिल्ड फॉर. राइट स्टूडेंट्स, उसने उस चीज का बिल नहीं लिया है तो तानिया कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट. राइट स्टूडेंट्स, अच्छा कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय, अब इसमें पूछा गया है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हु कैन फाइल द कंप्लेंट. इसका आंसर है बेटा complaint can be filed by any consumer, any registered consumer association, the central government and state government, one or more consumers on behalf of many consumers having same interest, and a legal representative of a deceased consumer, and a legal representative of a deceased consumer. कोई भी deceased consumer है उसका legal representative उसका lawyer हो सकता है, उनके blood relation में जो भी है वो हो सकते हैं. Right students, I hope this is very much clear to you. So students, 5th केस स्टडी क्लियर हो गई है. नाउ कम टू द 6th केस स्टडी. अब हम 6th केस स्टडी के ऊपर आते हैं. इस 6th केस स्टडी में क्या पूछा गया है? ऑन राइट डाउन द स्टूडेंट्स वी कैन से द लास्ट लाइन हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है. कैन सोनिका अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. ये 1 मार्क्स की केस स्टडी है स्टूडेंट. तो 1 मार्क्स की केस स्टडी इसका जो आंसर होगा इट इज रिलेटेड टू 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में ही होता है. सो हम 1 मार्क्स की केस स्टडी को देखते हैं. ऑन सोनिका's बर्थडे हर मदर गेव हिम अ पेयर ऑफ गोल्ड ईयररिंग. आफ्टर 1 month सोनिका ऑब्जर्व दैट द ईयररिंग आर लूजिंग देयर शाइन. शी चेक्ड द मार्क ऑन द ईयररिंग एंड फाउंड दैट इट वॉज नॉट अ प्रॉपर हॉलमार्क. स्टूडेंट्स, नाउ यू नो कि गोल्ड डायमंड ज्वेलरी पे हमेशा हॉलमार्क होना चाहिए. एंड हर मदर हैज बीन cheated by the shopkeeper.
So she filed a complaint in the district forum which rejected it. Right, students? Not satisfied by the decision of the district forum, she was very much disturbed and after 2 months decided to appeal further. Can Sonika appeal against the decision of the district forum? Give reason in support of your answer. Right, students? बेटा it is not at all. इसका आंसर क्या होगा बेटा? No. Sonika cannot file or appeal a case in the next forum because बेटा आप 3 टायर जुडिशियल मशीनरी में पढ़ चुके हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन में जाना है तो विद इन 30 डेज के अंदर जाना होता है, और सिमिलरली बेटा अगर स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में जाना हो तो विद इन 30 डेज के अंदर जाना होता है. यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर 2 मंथ्स डिसाइडेड, शी डिसाइडेड आफ्टर 2 मंथ्स, दो महीने के बाद वो डिसाइड कर रही है अपील करने की. सो आंसर है बेटा नो. Sonika cannot appeal now as the appeal has to be filed within 30 days of passing of the order by the district forum. So I hope this case study is very much clear to you. Now come to the 7th case study, students. हम 7th case study की तरफ चलते हैं. 7th case study consists of 3 marks. Right, students? In the last में हम देखते हैं कि first, second, third point में क्या पूछा गया है. Why do commercial transactions not fall under the purview of consumer under the Consumer Protection Act? क्लियर हो जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड केस स्टडी है. व्हाई डू यू थिंक दैट द अबव मेंशन केस वाज इनिशियली फाइल्ड इन अ गोवा डिस्ट्रिक्ट फोरम बाय वमन नागेश? थर्ड, वेयर डू यू थिंक वमन नागेश could have filed a further appeal in case he was not satisfied with the judgment passed about his case by the Goa State Commission? Now students, it has been very much clear. हमें ये तीनों पॉइंट पढ़ के क्लियर हो जाता है कि इट इज अ केस स्टडी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये कंज्यूमर फोरम के बारे में बात कर रहे हैं. 3 टायर जुडिशियल मशीनरी दैट कम्स अंडर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल की बात हो रही है. सो स्टार्टिंग से हम चलते हैं स्टूडेंट्स. इसमें क्या पूछा गया है? इन वन ऑफ द केसेस द गोवा स्टेट कमीशन held that the Consumer Protection Act is not for entertaining or compensating speculative transactions or losses. It held that compensation cannot be given under the Consumer Protection Act to those involved in sale purchase of shares, which are commercial transactions. The order followed an appeal by a Mumbai-based stockbroker, India Infoline Limited, against an order of a Goa District Consumer Forum. Initially, the judgment of the Goa District Consumer Forum had awarded damages to Panji resident woman Nagesh, who had lost money in share trading through a stockbroker, India Infoline Limited. Right, students? So this is supposed to be the case study. इस केस स्टडी के अंदर बेटा एक पर्सन है, उसने शेयर्स खरीदे थे और उसको लॉस हुआ है. राइट स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में ये सारी की सारी जानकारी है. अब हमें बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस, व्हाई डू कमर्शियल ट्रांजैक्शन नॉट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. राइट स्टूडेंट, इसका आंसर होगा बेटा अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस और रीसेल विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ कंज्यूमर. राइट स्टूडेंट्स, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग शेयर्स में गड़बड़ हुई है. राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया बेटा अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करते हैं दैट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ कंज्यूमर. लेकिन आप गुड्स खरीदते हैं सर्विस और उसको खरीदने के बाद किसी और को बेच देते हैं तो यू आर नॉट एट ऑल अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है ऑलरेडी. अब इसमें लिखा हुआ है इट्स वेरी मच क्लियर, अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस और रीसेल विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ कंज्यूमर. स्टूडेंट्स, फर्स्ट का तो आंसर ये हुआ. सेकंड, व्हाई डू यू थिंक दैट द अबव मेंशन केस वाज इनिशियली फाइल्ड इन द गोवा डिस्ट्रिक्ट फोरम बाय वमन नागेश? द वैल्यू क्लेम डिड नॉट एक्सीड 20 lakhs. राइट स्टूडेंट्स, जो वैल्यू है वो 20 लाख से ज्यादा की नहीं है, इसी वजह से बेटा ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस आया है. थर्ड का आंसर है ही कुड हैव फाइल्ड एन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर. राइट स्टूडेंट्स, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन थर्ड में, वेयर डू यू थिंक अ वमन नागेश कुड हैव फाइल्ड द फर्दर अपील इन केस ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट पास अबाउट हिज केस बाय द गोवा स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन की बात हो रही है बेटा, स्टेट कमीशन की बात हो रही है तो 30 days के अंदर अंदर कहाँ पर अपील कर सकता है? वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है. तो थर्ड का आंसर होगा he could have filed an appeal before the National Commission within 30 days of passing of the order.
I hope this is very much clear to you. Now come to the another case study. हम 8th केस स्टडी के ऊपर चलते हैं बेटा. 8th केस स्टडी में क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, ये देखते हैं 8th केस स्टडी में. ओके स्टूडेंट्स, 8th केस स्टडी में लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, नेम द रिड्रेसल एजेंसी टू विच ही कैन अप्रोच टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द लोकल मैन्युफैक्चरर. State any two directions which the consumer court can issue to the local manufacturer after being satisfied with the genuineness of the complaint. थर्ड में लिखा हुआ state any two values. Right students, so हमें ये पता लग जाता है after reading these lines that it is a case study of Consumer Protection Act. Now हम starting से देखते हैं क्या लिखा है इसमें. After completing his education, Arman opened a small restaurant in a posh market to earn his livelihood. In order to attract good clientage, he decided to install 2 air conditioners in the restaurant. Since he didn't have sufficient funds to buy air conditioner of a good brand, he bought 2 air conditioners from local manufacturer in Janakpuri, Delhi for rupees 20,000 each. Later on, he found that the compressor of one of the air conditioner was not working properly. Despite many complaints, the defect was not rectified by the manufacturer, so he feels very disappointed about the issue and wants to take a legal action against the manufacturer to not only get compensation but also to save other people from being duped by the local manufacturer. Right students, अब ये केस स्टडी है. अब फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि नेम द रिड्रेसल एजेंसी टू विच ही कैन अप्रोच. क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 20 लाख तक का केस का कहाँ पे लड़ सकते हैं हम केस, 20 लाख तक के अमाउंट में डिस्ट्रिक्ट फोरम. तो फर्स्ट का आंसर होगा इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम. Second, state any two direction which the consumer court can issue to the local manufacturer after being satisfied with the genuineness of the complaint. Right students, अब ये दो directions ये होंगी. To remove the defect in goods, to provide replacement for the defective goods or products. Right students, सेकंड का आंसर इसमें ये आएगा बेटा, टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स. ये किसके लिए जजमेंट आया है, ये मैन्युफैक्चरर के लिए जजमेंट आया जिससे एसी खरीदा गया था. और उसमें बेटा सेकंड जजमेंट क्या है, टू प्रोवाइड रिप्लेसमेंट फॉर द डिफेक्टिव गुड्स और प्रोडक्ट्स. राइट स्टूडेंट्स, थर्ड का क्या आंसर है, टू वैल्यूज है बेटा इसमें, ऑनेस्टी एंड कंसर्न फॉर पर्सन. थर्ड का आंसर होगा ऑनेस्टी होनी चाहिए और कंसर्न फॉर पर्सन. दिस इज सपोज टू बी द केस स्टडी ऑफ 4 मार्क्स. आई होप दिस केस स्टडी इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ कम टू द अनदर वन. हम अनदर वन पे चलते हैं बेटा. अनदर वन है 9th केस स्टडी है. 9th केस स्टडी में लास्ट में अगर हम देखें 2 पॉइंट्स दिए हुए, क्या पूछा गया है, नेम एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर दैट सूरज हैज एडवाइज सूर्यंश टू एक्सरसाइज. State any 3 functions highlighting the role of consumer organization. 4 मार्क्स का स्टूडेंट से क्वेश्चन है. राइट, हमें केस स्टडी से क्लियर हो गया है. यहाँ पर हमने केस स्टडी के लास्ट में दोनों पॉइंट पढ़े हैं कि ये कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात हो रही है और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है. तो दिस इज द केस स्टडी फ्रॉम द चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अब हम इसको बेटा देखते हैं. सूर्यांश बुक्ड अ फ्लाइट थ्रू अ प्राइवेट बिल्डर इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 crore. As per the terms of the contract, the builder promised to provide him with all the bases and modern amenities such as continuous electric supply, CCTV camera, club facility, good quality of water, good security, etc. Although he was given the possession of the flat in time, the builder did not provide all the basic and common facilities, which also included 3-tier security having CCTV camera coverage for each floor. अब सूर्यांश kept complaining to the builder after possession of the flat for non-installation of CCTV camera and other common and basic amenities as promised at the time of agreement. But the builder kept assuring him that he will do the needful and he need not worry. After a month, Suryansh had to travel abroad, so he left his home with his flat duly locked. But on his return, he found that his flat has been robbed and a theft of rupees 10,000 and jewelry worth rupees 10 lakh had taken from place. चोरी हो गई है बेटा उसके पास 10,000 रुपीज का कैश और 10 लाख रुपए के बेटा जेवर की चोरी हो गई है. He complained to the builder that had CCTV camera being installed, it would have been returned and the theft would not have been taken place. क्योंकि बेटा बिल्डर ने CCTV कैमरा नहीं लगाया है और थेफ्ट की पहचान नहीं हो सकी है. Also CCTV would have ensured that no unwanted person would have entered the building. When Suryansh discussed this incident with his friend Suraj, who runs a consumer association, he advised him to file a case against the builder. Right students,
जो सूर्यांश का एक फ्रेंड है सूरज, उसने कहा कि भाई इसके खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करिए। अब नेम एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर दैट सूरज हैज एडवाइस सूर्यांश टू एक्सरसाइज। फर्स्ट बेटा जी, ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसका बेटा फर्स्ट का आंसर है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, इफ अ कंज्यूमर इज डिससेटिस्फाइड रिगार्डिंग एनी गुड्स और सर्विसेज, तो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। तो फर्स्ट का आंसर होगा राइट टू बी हर्ड। स्टेट एनी 3 फंक्शंस हाईलाइटिंग द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। आप 3 फंक्शंस एनजीओ के लिख सकते हैं। एनी 3 फंक्शंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देयर विल बी 9 फंक्शंस है बेटा, उस 9 फंक्शंस में से 3 फंक्शंस आप लिखेंगे रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ के। आई होप दिस केस स्टडी इज वेरी मच क्लियर। 1 मार्क्स में बेटा आपका राइट आ जाएगा, राइट टू बी हर्ड उसका एक्सप्लेनेशन। बाकी 3 फंक्शंस एनजीओ में 3 मार्क्स कंटेन कर लेंगे। आई होप दिस केस स्टडी इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस स्टडी। 10th केस स्टडी है बेटा। इसमें 10th केस स्टडी में लास्ट में देखेंगे बेटा क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड इन द अबव केस, राइट स्टूडेंट्स। और उसके बाद पूछा गया है एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स, राइट स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स बीइंग वायलेटेड इन द अबव केस। और बेटा इंपॉर्टेंस पूछी गई है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है बेटा। 1 मार्क्स का राइट होगा इसमें, उसका एक्सप्लेन करना है। और आपको 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो 2 मार्क्स की होगी। फर्स्ट और सेकंड को पढ़ने के बाद हमें पता लग गया स्टूडेंट्स की ये किसके लिए पूछा गया है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से केस स्टडी पूछी गई है। सो लेट्स डिस्कस द केस स्टडी। Aryan went to purchase a pack of chocolate for his son from a shop in the nearby market. Despite his preference to buy a pack of a particular brand, the shopkeeper forced him to buy a pack of chocolate of another brand by giving some odd justification. After coming back home, Gaurav was feeling very dissatisfied. Right students, so identify and explain the right of a consumer. तो क्या होगा बेटा, पहला राइट क्या है, राइट टू चूज और राइट टू सिलेक्ट। इसमें आइडेंटिफाई, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा राइट टू चूज और राइट टू सिलेक्ट। बेटा उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी कंज्यूमर कोई भी बिजनेसमैन किसी भी तरीके से कंज्यूमर को प्रेशराइज नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर गुड्स लेने के लिए। उसको पसंद आएगा तो लेगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 2 पॉइंट्स आप जानते हैं बेटा जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 इंपॉर्टेंस। तो आप कोई भी तीन में से 2 इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंस कौन सी हैं स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। इनमें से यू हैव टू एक्सप्लेन एंड राइट डाउन एनी 2 इंपॉर्टेंस। आई होप 10th केस स्टडी इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ कम टू द लास्ट केस स्टडी। लास्ट केस स्टडी में पूछा गया बेटा सिराजुद्दीन, लास्ट पैराग्राफ इसमें देखें बेटा क्या है इसके अंदर, लास्ट लाइन में देखें, सजेस्ट हिम द हाईएस्ट अथॉरिटी वेयर ही कुड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इट इज वेरी मच क्लियर बेटा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर नेशनल कमीशन की बात हो रही है। सो जस्ट इसमें हम पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। सिराजुद्दीन परचेस्ड अ कार फॉर ₹15 lakhs फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंड फाउंड दैट इट हैज एयरबैग्स वर डिफेक्टिव। आफ्टर मेनी कंप्लेंट्स विद द कंपनी that went unheard, he filed a case in a district forum. A student, he was not satisfied with the order of a district forum. He can appeal before the state commission, and on being dissatisfied with the order of state commission, he appealed before the national commission. Sirajuddin was not satisfied with the order of national commission. Suggest him the highest authority where he could appeal against the decision of a national commission. Student, this is supposed to be the very important case study. बहुत ध्यान से सुनिएगा इस केस स्टडी को। ये 1 मार्क्स की केस स्टडी है। सिराजुद्दीन ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल किया था, वहां पर ही इज नॉट सेटिस्फाइड, उसने फिर फाइल किया स्टेट कमीशन में, राइट स्टूडेंट्स, वहां पर भी वो डिससेटिस्फाइड रहा। नाउ ही फाइल्ड द केस इन नेशनल कमीशन, नो प्रॉब्लम, वहां से भी वो डिससेटिस्फाइड रहा। अब वो इसके अलावा और कौन सी हाईएस्ट अथॉरिटी है एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन की, जहां पर वो केस फाइल कर सकता है। स्टूडेंट, द आंसर इज नो, he cannot appeal to any other authority now. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्ट्रिक्ट फोरम मैक्सिमम नेशनल कमीशन तक जा सकते हैं केस फाइल करने के लिए, स्टेट कमीशन मैक्सिमम नेशनल कमीशन तक जा सकते हैं केस फाइल करने के लिए, लेकिन ओनली दोज केसेस हु डायरेक्टली कम्स अंडर नेशनल कमीशन, आई रिपीट, ओनली दोज केसेस हु डायरेक्टली कम्स अंडर नेशनल कमीशन कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट। जो केस डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आते हैं, और वो कौन से होते हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर के होते हैं, राइट स्टूडेंट्स, सिर्फ वही
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मैक्सिमम केस नेशनल कमीशन तक जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो आंसर क्या होगा बेटा इसका? आंसर हम देख लेते हैं। ही कैन नॉट अपील to any other authority as only those matters which have been directly filed in National Commission and where the value of goods and services in question along with the compensation claim exceeds rupees 1 crore are applicable before Supreme Court. I hope students all the 11 case studies are very much clear to you. If you find any difficulty, you can ask me anytime. Students, we have discussed the notes now. Now I have discussed the case studies. Now I am going to give you a test इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। उस एक्सरसाइजेस के अंदर बेटा OTQs, MCQs होंगे, 1 मार्क्स के बेटा जी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स होंगे, और उसमें कुछ छोटी केस स्टडीज भी होंगी, और देयर विल बी 1 or 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो। सो डू द टेस्ट वेरी मच सिंसियरली, राइट स्टूडेंट्स। और बेटा फिर आप मेरे को पर्सनल विंडो पे उसके आंसर्स भेज सकते हैं। और बेटा if you find any difficulty, you can ask me. Now the case studies are very much clear to you. I have already discussed the notes also. If you find any difficulty, you can ask me, or now do the test very much carefully. और बेटा very honestly आप टेस्ट देंगे। I am giving you the test now. I am sending you the test now. आप उसको किसी भी कॉपी में कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अपनी असाइनमेंट कॉपी में भी कर सकते हैं या अपनी नोट्स कॉपी में भी कर सकते हैं, बट do the test very much sincerely and honestly. If you find any difficulty, you can ask me on my personal window. Right students? Okay, thank you students.